Assalamu alaikum. This is Sarazar. I'm here again with a new topic of training and development, which is especially related with the human resource development in your HR course. So let's start the topic of training and development. First of all, okay, this presentation also have a video, but this might not be connected or attached with this video. So I will give you the video, especially on the WhatsApp. So we have the content of this topic, HRD, and how training and development relates with HRD, human resource development. As you are already aware with the focus and prime objectives of HRD, human resource development, it mainly focused on the development of their human resource or their workforce. Okay, the role of TND that we are seeing here, the role of TND, as you see here, the role of TND. So this is very important for us. How the TND plays a major role in the HR functions. Then, or why organization always go for training and why they needed it very badly. Okay. Then the critical training issues that came in during the training sessions or before the training sessions, and what must be the process of training, as you are seeing over here that the training pursue with a proper process of need analysis, assessment and then policy. Okay, so then हम उसके बाद जो है वो types of training जो हैं उनको जो है वो डिस्कस करेंगे कि what types of trainings are provided according to the scenario, according to the requirements of the performance measures. Okay, we see here, sorry, going back to the previous slides. So we see here that training is a prior suspect of development. Okay, so if there is no training, there will be no development. Okay, so it purely relates with the development of the employees. Okay, so that's how the training is relating with the human resource development. Okay, so what must be the goals of training? So ये when to provide training, सबसे पहले तो एक सवाल यही आता है, सही है. So always remember that in an HR, when you are about to train people, so it is not a rule of thumb that you always train people when it is needed. Okay, it is not a rule of thumb. Okay, training, goals of training comes with the assessment. Okay, the assessment of training. Okay, I'm writing this with a pointer, so it is very awful, it looks like very awful to you, but sometimes we have to compromise with the things. Okay, so assess gives us the result of will or skill. Okay, if there are a skills problem in an employee or other set of employees, so the training is a हम कहते हैं कि prior method or technique to improve their skills. Okay, to improve their work efficiency. Okay, if there is a problem of will, then there will be no solution. Remember that. अगर उनकी कोई will की problem है तो फिर कोई solution नहीं है. सही है, तो मैं इसको यहाँ पे काटम कर रहा हूँ. अगर assessment में यानी कि appraisal में हमें उनकी will की problem नजर आती है तो there will be no solution. So when training is required, when there is a problem of skill. सही है, skills can be improved but will cannot be improved. Remember that in your whole lifetime, whenever you go to any organization to render your services in an HRM department, so always remember training require assessment, and when assessment gives you the deficiency of skill of particular employee or the set of employees, so training is needed. If there is a will problem or if there is a will deficiency in his work potential, so there will be no solution. Remember that. Okay, so
imply community, what must be the goals of training, why training is provided. Training is provided for the competency of development of employees, okay, to develop the competency of employees means to improve their potential, to improve their skills. सही है, when their skills and their potentials are improved, or to improve their prior knowledge also, okay. So when their potential and when their skills and when their prior knowledge is improved, so there is automatically an improvement in performance, as you are seeing over here. Then employees and organizational growth. When employees grow, organization always grow with it, okay. Reduction in learning time of employees, so they become more effective sooner or possible, okay. So these are the goals of training, but the prime objective or the prime goal of training is competency development of employees, okay. So अब हम next slide की तरफ चलते हैं कि when the training is needed, okay. So training is always needed when the appraisal indicates the deficiency, सही है, indicates the deficiency of skill, सही है. I'm again revising this thing here and again repeating this thing here, that when the appraisal shows the deficiency of skills, सही है. If there is a deficiency in will, there will be no solution. So what must be then the next step will be the need of training. The next step will be the benchmarking, the status of improvement, okay. Now you have to इसको हम कहेंगे ना कि sequentially keep things in order, that how improvement should come, okay. So this is called the benchmarking. Overall professional development, this is the need of training. Why? Because if the employees does not have professional potentials, so how they can develop themselves and how the organization can develop, okay. Succession planning for employees, okay. Then training also indicate the succession planning for employees, that if they can improve, they can succeed into more higher roles in the organization, okay. Pilot or test new operations of management system, so yeah, training also needed when there is a major change in organization, especially जब हम देखते हैं कि मतलब किसी भी हम कहते हैं एस्पेक्ट में ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई चेंज आ रहा होता है, तो उसको पायलट या टेस्ट करने के लिए, उन ऑपरेशंस को टेस्ट करने के लिए उस मैनेजमेंट सिस्टम में ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, सही है. सपोज दैट कि मिसाल के तौर पे अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक नया जो हम कहते हैं कि डेटा जो मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर लोग एकदम से काम तो नहीं करना शुरू कर देंगे. जाहिर सी बात है they must be trained for specifically for that data management software or data management system, सही है. तो उसी से पता चलेगा कि जनाब हाउ जो है वो मतलब ट्रेनिंग गिव्स जिसको कहते हैं असिस्ट इन द अचीवमेंट ऑफ गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ओके. So other training for specific tasks, sometimes trainings are needed for a specific task, so it depends upon the requirement of training at that time or at that particular time, okay. So this is the need of training in an organization, okay. So what must be the benefits of training, why we train people? Job and employee satisfaction. First of all, people get satisfied with their job, and if they are satisfied with their job, if there is a job satisfaction, there is obviously and there is automatically a development in the organization and their role also, okay. Employee morale get high, organizational effectiveness is इसको कहते हैं कि it is an outcome of training. Reducing employee turnover, आपने देखा होगा अक्सर के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो छोड़कर जा रहे होते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, सही है. कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, उनके कोई भी ग्रीवेंसेस होते हैं, सही है, जिसकी बुनियाद पर, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ट्रेनिंग इज़ अ गुड मेजर, ओके, एंड गुड मेथड, ओके. फिर इसके बाद टेक्नोलॉजिकल एंड ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट, लेकिन यहाँ पर एक बार याद रखिएगा कि व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्किल नॉट द विल, ओके. देन टेक्नोलॉजिकल ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स जो हैं उसके लिए ट्रेनिंग इज़ वेरी नेसेसरी. स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट्स के लिए
एथिकल इम्प्रूवमेंट्स के लिए समटाइम्स पीपल लर्न एथिक्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सही है। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि पीपल लर्न एथिक्स फ्रॉम देयर होम, सही है, जो भी उन्होंने एथिक्स सीखे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नर्चर पीपल विद द एथिक्स ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स। अब घर से तो आप प्रोफेशनल एथिक्स नहीं सीख कर आएंगे ना, आप तो ऑर्गेनाइजेशंस में ही प्रोफेशनल एथिक्स सीखेंगे, तो उसके लिए भी ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है कि हाउ टू हैंडल कस्टमर्स, हाउ टू डील विद द पीपल व्हेन देयर इज अ रश टाइम, व्हेन देयर इज अ, जिसको हम कहते हैं कि वीकेंड टाइम, तो उसमें आपने कैसे डील करना है, सही है ना। तो ये बेनिफिट्स हैं ट्रेनिंग के। सो जाहिर सी बात है, जब ट्रेनिंग के इतने प्राइम और कोर जिसको हम कहते हैं कि गोल्स हैं, तो जाहिर सी बात है इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉस्टली, सही है। तो इसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाना भी जो है वो मतलब ट्रेनर का काम होता है कि वो जिसको हम कहते हैं ना कि लेस से लेस इनपुट में ग्रेटर से ग्रेटर आउटपुट की एक हम कहते हैं कि कोशिश करें, और यही जो है ट्रेनिंग आपके सामने आ सकते हैं। देन जो इश्यूज जो मतलब अक्सर आ जाते हैं ट्रेनिंग में, सही है, उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो यही है कि जनाब जो वर्क फोर्स है उसकी डाइवर्सिटी आप देखते हैं बहुत ज़्यादा आपको नज़र आती है। अब वर्क फोर्स डाइवर्सिटी क्या होती है, ये मतलब वर्किंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल सिस्टम, फ्रॉम डिफरेंट, इसको हम कहते हैं कि कल्चरल प्रैक्टिसेस, ओके। तो फिर जाहिर सी बात है उसमें फिर ये क्रिटिकल इशू है, सही है। कल्चरल मिक्स भी एक इशू है, जब वो कल्चरल या एथनिसिटी, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के अंदर एथनिसिटी भी आ जाती है, सही है, कल्चरल मिक्स भी आ जाता है, सही है ना। फिर इसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन जो है या ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मतलब ये नहीं होगा कि आपका कल्चर ये है तो वो उसी के मुताबिक अपने आप को ढालें। यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में अपने आप को मोल्ड डाउन करना होगा, बिल्ड करना होगा, सही है। तो अब उसके अंदर भी जाहिर सी बात है अक्सर औकात कुछ एम्प्लॉयज होते हैं उनके पर्सनल ट्रेड्स भी क्रिटिकल इश्यूज होते हैं ट्रेनिंग के अंदर, बिकॉज समटाइम्स द मैटर ऑफ देयर लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स, सही है। इसका मैं एक मतलब आपको एक ये सुनाता हूँ कि देखें एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो अटेंडेंस सिस्टम लगाने का जो है वो हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि जो उनकी लेबर जो हम थी लेबर जो कैडर था, सही है, वो उसको सिस्टम को यानी कि ऑटोमेटेड जो सिस्टम था अटेंडेंस का उसको वो पसंद नहीं करती थी, सही है। तो उन्होंने उसको बाकायदा ऑटोमेटेड अटेंडेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, सही है। तो ये पर्सनल ट्रेड्स भी होती हैं, कभी कभार क्रिटिकल इश्यूज बन जाते हैं ट्रेनिंग के अंदर, ओके। तो इनके बारे में भी आपको मालूमात होनी चाहिए, सही है। तो देखें ट्रेनिंग के दौरान या ट्रेनिंग देते वक्त ट्रेनर को ये पता होना चाहिए द एफिशिएंसी लेवल ऑफ पीपल और द एफिशिएंसी लेवल ऑफ ऑडियंस सिंपली, और इसके अलावा जो है उनका नॉलेज, प्रायर नॉलेज लेवल जो है वो उसको मालूम होना चाहिए, सही है ना। फिर इसके आखिर में यही आता है कि इफ द ट्रेनिंग इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस इट्स वर्सेस एफिशिएंसी, ओके। अगर ट्रेनिंग्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हासिल करने में जो है अगर मदद कर रही हैं, असिस्ट कर रही हैं, तो दे आर ऑलवेज कॉस्ट इफेक्टिव, ओके, रिमेंबर दैट, और एफिशिएंट होंगी। और अगर वो मदद नहीं कर रही हैं तो जाहिर सी बात है फिर एफिशिएंट होंगी, सही है ना। फिर इसके बाद हम नीड असेसमेंट पॉलिसी की तरफ चलते हैं, बिकॉज वी न्यू ऑलरेडी दैट training needs assessment, okay। So what is need, okay, what is a training need, सही है। training need is simply, remember training is not what is ultimately important, performance is, mark Rosenberg, okay। So when training is needed for the improvement in performance, okay, not more than 6 to 10% of expenditures in training actually result in transfer to the job, सही है। satisfaction leads to performance, always remember this इसको हम कहते हैं कि update in by Porter and Lawler, because इससे पहले जो ये एक तरह से हम कहते हैं कि एक तरह से जिसको हम कहेंगे ना कहावत सी थी ये कि performance leads to satisfaction, but always remember that satisfaction leads to performance, सही है। तो training must provide, the training policy must provide the satisfaction level to the employees. They must be satisfied, the employees must be satisfied with the training. That's how they can improve their performance, okay. Then
नीड असेसमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे, सही है। अब नीड असेसमेंट क्या है? एक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स और उनके दरमियान जो गैप है, सही है, जो डेफिशिएंसी है उसे हम गैप कहते हैं। अब देखें यहाँ वो बात आ गई विल और स्किल की, सही है। इफ देयर इज अ विल गैप, नो सोल्यूशन, सही है। परफॉर्मेंस अप्रेजल शोज दिस गैप, ओके, जो एस्टिमेटर है, सही है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, सही है, जब पॉसिबल ट्रेनिंग नीड्स जो है वो बता देंगी कि डिजायर्ड परफॉर्मेंस जो ऑप्टिमल है और माइनस एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअली जो उसकी परफॉर्मेंस अभी इस वक्त मींस इफ ही इज गिविंग हिज 60% परफॉर्मेंस आउट ऑफ 100%, सो इट मींस ही इज 40% डेफिशिएंट इन स्किल्स और इन पोटेंशियल, ओके। सो वो पोटेंशियल जो फैक्टर्स हैं उन्हें भी हमने आइडेंटिफाई करना होगा कहाँ कहाँ वो वीक है उन पोटेंशियल फैक्टर्स में, और सेकेंडली जो स्किल्स के फैक्टर्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना होगा। तो जब हम ट्रेनिंग को डिज़ाइन करते हैं तो ये सारे जो जिसको हम कहते हैं असेसमेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें काम आते हैं, और उसी हिसाब से फिर वो ट्रेनिंग जो है वो डिज़ाइन की जाती है, सही है। ट्रेनिंग ये नहीं होता कि मतलब आपने बस आपका मूड हुआ आपने कंप्यूटर पे ट्रेनिंग बनाई और जनाब हो गया, नहीं, उसके लिए असेसमेंट ज़रूरी होती है, सही है। देन उसके बाद ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो गोल्स हम पढ़ चुके हैं, सही है। तो इसको रिपीट करना आई थिंक मतलब देयर विल बी मतलब जिसको हम कहते हैं लॉस ऑफ टाइम, ओके। अब ट्रेनिंग टाइप्स कितनी तरह की होती हैं, सही है ना। देखें ट्रेनिंग टाइप्स जो होती हैं, सही है, वो एक तो होती है सिस्टमैटिक और एक होती है प्लान, ओके। वो लर्निंग जो उसको हम कहते हैं लर्निंग जो एक तरह से मेथड्स हैं वो अलग हैं, सही है, ऑन जॉब और ऑफ द जॉब, वो लर्निंग मेथड्स हैं, ये ट्रेनिंग टाइप्स हैं, सही है। अब ट्रेनिंग टाइप्स सिस्टमैटिक होती हैं, सिस्टमैटिक का मतलब ये होती है कि जनाब ट्रेनिंग नीड्स डेफिनेशन, सही है, जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं या ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उनकी नीड्स वेल डिफाइंड होती हैं, सही है, यानी कि उसमें पता होता है कि वेयर दे आर डेफिशिएंट, तो उसी हिसाब से जो है वो मतलब उसको किया जा रहा होता है। सॉर्टिंग फॉर नीड सेटिस्फैक्शन, सही है, वो ट्रेनिंग इस तरह से डिजाइन की जाती है, इस तरह उनको जो है मतलब प्रेजेंट किया जाता है कि वो सेटिस्फैक्शन की तरफ ले जाएं। एक्सपीरियंस ट्रेनर्स जो होते हैं वो इसमें जो है वो मतलब हिस्सा लेते हैं, सही है। इन एक्सपीरियंस ट्रेनर्स जो हैं वो ऐसी ट्रेनिंग्स नहीं बना सकते। फिर इसके अलावा इन सिस्टमैटिक ट्रेनिंग्स में फॉलो अप या इवेल्युएशन प्रोसेस भी होता है, जिसमें वट एवर द मटेरियल हैज़ बीन प्रेजेंटेड, और जिसको हम कहते हैं कि जो उसको हम कहते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटेड, उसके बारे में इवेल्युएशन भी ली जाती है कि हाउ इट वाज इफेक्टिव और हाउ बेटर इट मेड एन इफेक्टिवनेस इन the morale, in the potential of employee, okay. Then what are the planned, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि planned जो trainings होती हैं उसमें सबसे पहला प्रोसेस ही ट्रेनिंग नीड्स की आइडेंटिफिकेशन है। देन द लर्निंग रिक्वायरमेंट्स, हाउ पीपल लर्न, बिकॉज एवरी एम्प्लॉय हैज डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एंड डिफरेंट जिसको हम कहते हैं मेथड्स ऑफ लर्निंग, सही है। हर कोई एक तरह नहीं पढ़ता, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग में हमने क्या क्या जो मकासद हैं वो हासिल करने हैं। फिर इसके बाद प्लान ऑफ ट्रेनिंग, ओके, प्लानिंग ऑफ ट्रेनिंग कि जनाब ट्रेनिंग को किस तरह जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर उसके बाद फैसिलिटेटर्स होते हैं इसमें, सही है, जो इस ट्रेनिंग को कंडक्ट करा रहे होते हैं, एंड देन द इम्प्लीमेंटेशन, सही है, और इस ट्रेनिंग को फिर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। सो दीज आर द ट्रेनिंग टाइप्स दैट जिसको हम कहते हैं कि दो तरह की ट्रेनिंग्स हैं, ओके। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो सिस्टमैटिक ट्रेनिंग होती है, सही है, वो किसी एक पर्टिकुलर जो हम कहते हैं कि एरिया ऑफ डेफिशिएंसी जो है वहां पर उसे दिया जा रहा होता है, सही है, सिस्टमैटिक ट्रेनिंग को, सही है। और प्लान जो ट्रेनिंग होती है वो वहां पर पर्टिकुलर एरिया ऑफ डेफिशिएंसी नहीं होता, बल्कि उसके अंदर कई ऑब्जेक्टिव्स या एरियाज जो हैं डेफिशिएंट एरियाज जो हैं उन्हें भी कवर किया जा सकता है, सही है।